Good morning, everyone. Good morning, ma'am. So, kids, which chapter is going on? Chapter 17. Chapter number 17, or district. Okay. So, few contents we discussed yesterday. Yes? Okay. So, now who will tell me how many states are there in India? Only yes, Manas? How many states are there in India? I was show you map of India. Huh? Yesterday I showed the map. I will show it. So there are how many states? Yes, there are 20 states in India. Yes? Who is our Prime Minister? Who is our Prime Minister? Prime Minister of India. Yes, Aradhya. Very good. Mr. Narendra Modi is the Prime Minister of India. And who is the President of India? President of India. Yes, Arman. Mrs. Draupadi Murmu. Okay. So, our country is divided into states. Who runs state? Which type of government runs state? स्टेट को किस टाइप की गवर्नर जो है गवर्नमेंट है रन करवाती है? यस अग्रिमा, स्टेट गवर्नमेंट. एंड हु रन्स द होल कंट्री? यस आरोही, सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, हु इज आवर चीफ मिनिस्टर? चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान. यस इशिका, वेरी गुड, मिस्टर भजन लाल शर्मा. बी लाउडर. Okay, and who is the governor of Rajasthan? अभी recently हमारे new governor बने हैं ना? What is his name? I told you yesterday. What is the name of our new governor? Governor of Rajasthan. You forget? Huh? Haribhau Bangde. Yes. He is our new governor of Rajasthan. Okay? Sit. How many districts are there in Rajasthan? Gunesh, how many districts are there in Rajasthan? Okay. So आप सब लोगों ने यहाँ पे correction कर लिया था? Yes, ma'am. On this side? हाँ? Yes, ma'am. How many districts are there? 50. Okay. What is the total area of Rajasthan? Ma'am. Yes, Kritika. 3,42,239. Where? Square kilometer. 3,42,239 square kilometer is the total area of Rajasthan, which is the largest state of India. Yes, Diksha? Rajasthan. Rajasthan is the largest district of India. Yes. Now, tell me about the Gram Panchayat. Okay. Who is the head of Gram Panchayat? Who is the head of Gram Panchayat? Yes, Gunjan? Sarpanch. And who is the head of municipal corporation or municipalities? Anyone? जैसे ग्राम पंचायत में सरपंच होता है वैसे ही म्युनिसिपैलिटीज में कौन होते हैं? म्युनिसिपैलिटीज में मेयर. मेयर इज द हेड ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपैलिटीज. सिट डाउन. So kids, as you all know, our India is a democratic country. Democratic means of the people, for the people and by the people. Yes, जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन है. Means we elected or representative by the voting system.
यस, इलेक्शंस होते हैं ना हमारे यहाँ पे. यस. ओके, सो वी आर ऑन yesterday. Okay, my first one question is remain for you. What is the total population of Rajasthan? Total population of Rajasthan. मैम Yes, Diya. 8.39 करोड़. यस. तो बेटा ये तो आपको जो मैंने बताया था ना अप्रोक्सीमेटली 8 करोड़. ओके, वो अभी अकॉर्डिंग टू द सेंसेक्स नहीं है. ठीक है, हमारी लास्ट जो सेंसेक्स आया था, ठीक है, पॉपुलेशन का वो आया था 2011 में, विच इज 6.8 करोड़. ओके, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान. बट अभी हमने जो लगाया है वो अप्रोक्सीमेटली 8 करोड़ है. ओके, अंडरस्टूड? सिट. Now we are on this page number. This is the page number. Yes, 136. तो यहाँ तक हमने कर लिया था पंचायत समिति. ओके, यहाँ तक आप सबको समझ में आया था? यस. ओके, तो ये एक बार मैं और बता देती हूँ कि ग्राम पंचायत के अंदर बहुत सारे विलेजेस आते हैं. ठीक है, और बहुत सारी ग्राम पंचायत जो है वो पंचायत समिति के अंडर आती हैं. ठीक है, ये सब क्या इनका वर्क क्या होता है? द वर्क ऑफ पंचायत समिति और ग्राम पंचायत टू डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस. विलेजेस का डेवलपमेंट करना, ये इनका वर्क होता है. किसका? पंचायत समिति और ग्राम पंचायत का. ठीक है, और सिटीज में किसका वर्क होता है? ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपैलिटीज का. रोड सही है या नहीं, हॉस्पिटलिटीज है या नहीं, प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम हो रहा है या नहीं, तो ये सब वर्क किसको देखना है? विलेजेस में ग्राम पंचायत को और सिटीज में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को. ठीक है, नाउ here are the map of given to you 12 डिस्ट्रिक्ट in your next पेज. आपके नेक्स्ट पेज पे बेटा आपको 12 डिस्ट्रिक्ट का क्या दे रखा है? मैप. ये डिस्ट्रिक्ट मैप है. ओके, दिस इज द 12 इज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. राजस्थान के कल आपको मैंने 50 डिस्ट्रिक्ट बताए थे ना. सो 12 इज द वन ऑफ देम. 12 उनमें से एक डिस्ट्रिक्ट है. ओके, ये इसका मैप है जहां इसके कुछ मेजर प्लेसेस है जो यहाँ पर इंडिकेटेड है. क्या क्या है वो? शाहबाद है, ओके, किशनगंज है, बारन है, अतरू है, छिपरा बारोड़ है, छाबरा है, अंता है और गंगरोल है. ये इनके यहाँ के प्लेसेस है. ठीक है, अब आपको ये क्या बोल रहा है? आपको आप अपने मैप को भी आपको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जो हमारे जयपुर का मैप है. ओके, लेट मी शो यू द मैप ऑफ जयपुर. Is it visible? हाँ, दिस इज द मैप ऑफ जयपुर. ओके, आपका जयपुर भी कुछ मेन प्लेसेस में डिवाइडेड है. एंड व्हाट आर द नेम ऑफ दीज प्लेसेस? व्हाट आर द नेम? आमेर. ओके, दिस इज द मेन सिटी जयपुर. आपकी जयपुर की जो मेन सिटी है वो है. ठीक है, इसके टच में जो अदर जो छोटे छोटे से प्लेसेस हैं वो है आमेर, फुलेरा, ठीक है, और फागी है, सांगरेर है, चाकसू है, बस्सी है, रामगढ़ है, चोमू है, शाहपुरा है, विराटनगर है, कोटपुतली है. ये इसके नियर बाय प्लेसेस है. ओके, ये सब आपके जयपुर के अंदर इंक्लूडेड है. इन सब प्लेसेस के अंदर जयपुर डिस्ट्रिक्ट लगता है. समझ आया? ओके, ये कुछ विलेजेस है जो आपके जयपुर के नियर बाय हैं. ठीक है, एंड दे आर अंडर द जयपुर डिस्ट्रिक्ट. ओके, सो यू नो व्हाई वी कॉल जयपुर पिंक सिटी? व्हाई वी कॉल जयपुर अ पिंक सिटी? हाँ, लेट मी शो यू. जयपुर,
Yes. This is the picture of जयपुर की हम इमेजेस ले लेते हैं कुछ अच्छी सी. तो दिस इज द वेरी फेमस प्लेस ऑफ जयपुर. व्हाट इट्स नेम? Yes, this is Hawa Mahal. Okay, you know why we call the Jaipur a pink city? जयपुर को पिंक सिटी क्यों बोलते हैं? हाँ? बिकॉज जो इसके बिल्डिंग्स है इन पे किस कलर का पेंट हुआ है? पिंक कलर. सो वी कॉल जयपुर एज अ यस. ओके. तो बेटा हमारी जो जयपुर है ये इनका जयपुर का नेम जो है वो सवाई मानसिंह सवाई जयसिंह जी के नेम पर है. सवाई जयसिंह सेकंड. ओके. उन्होंने जयपुर को एस्टैब्लिश किया था. ही वॉज द ग्रेट एस्ट्रोनॉमर. बहुत अच्छे एस्ट्रोनॉमर थे. ठीक है. उन्होंने बहुत अच्छे प्लान के साथ जयपुर सिटी को डेवलप किया है. ओके. सो ऑन हिज नेम द डिस्ट्रिक्ट नेम इज जयपुर. ओके. सवाई जयसिंह जी के नेम पर सवाई जयसिंह सेकंड उनके नेम पर आपके जयपुर का नेम है. ओके. अंडरस्टूड? Okay, now tell me which is the what people wear here? People क्या पहनते हैं? मैन क्या पहनते हैं? वुमेन्स का जो मेन यहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस है. What is the main traditional dress of your district? Yes, घाघरा चोली है ना. And what is man wear? What is the main traditional dress? धोती कुर्ता. Yes, and the main is turban. Okay. Or what is the main food of Jaipur? Yes, dal bati churma, because it is the traditional food of Rajasthan. So as usual it is the traditional food of Jaipur also. Okay. What are the main festival of Jaipur? Main festivals. It is the festivals we celebrate all over the our country. दिवाली होली तो हम पूरी कंट्री में सेलिब्रेट करते हैं. बट व्हाट इज द मेन फेस्टिवल ऑफ जयपुर? नो. संक्रांति तो जयपुर में भी बनती है और अहमदाबाद में भी होती है. मेन फेस्टिवल इज गणगौर तीज. Gangor Tees. These are the main festival of Jaipur district. हमारे यहाँ के मेन फेस्टिवल ये है. यहाँ पे फेयर लगते हैं ना. तो गणगौर और तीज हमारे यहाँ का मेन फेस्टिवल है बेटा. ओके. और बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट वर्क भी जयपुर के फेमस है ऑल ओवर द वर्ल्ड. ओके. जयपुर का हेरिटेज बहुत अच्छा है. यहाँ के मॉन्यूमेंट्स बहुत ज्यादा फेमस है ना. मेन मॉन्यूमेंट तो आपके सामने ही है. दिस इज हवा महल है ना. और इसकी वजह से आपका जो जयपुर है बहुत ज्यादा फेमस है इन द वर्ल्ड. ओके. सो लेट्स सी कंटिन्यू द चैप्टर. सो देयर आर सम क्वेश्चंस. वेयर इज द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड? आपके डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कहाँ है? वेयर इज द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सिचुएटेड? तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट में ही होगा. तो आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कहाँ है? व्हाट इज द नेम ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट? So already obviously its headquarters situated in it Jaipur. Okay. Which is the national highways of your district? National highways are the roads which connected the main cities. Okay, main cities. ये नेशनल हाईवेज ऐसी रोड्स होती है जो मेन सिटीज को कनेक्ट करती है ऑफ द कंट्री की जो मेन सिटीज होती है इनको आपस में कनेक्टेड करती हैं. ओके. सो वी कॉल देम नेशनल हाईवेज. आपने नेम सुना होगा NH11, NH8, yes, NH21. These are the
national highways of Jaipur. Okay, they connected the Jaipur to the other main cities. Next is name the lake or pond of your district. आपको पता है जयपुर में भी कोई लेक है? हाँ, there is a artificial lake in which Jal Mahal is situated. What is the name of the lake? हाँ, you ever seen जल महल? जल महल देखा है सबने? तो जल महल जिस लेक पर है, what is that? It is an artificial lake and what its name? Mansagar Lake. Okay, so the lake situated in Jaipur is? Yes, you write it yourself and next is the main river flow through your district. क्या आपके डिस्ट्रिक्ट से कोई रिवर फ्लो होती है? You ever seen the name of द्रव्यवती रिवर? द्रव्यवती रिवर भी बेटा हमारे जयपुर से फ्लो करती है और बाणगंगा भी फ्लो करती है. ऐसी बहुत कुछ रिवर्स है जो आपके यहाँ पर जयपुर से फ्लो करती है. ओके, यू हैव टू सर्च द आंसर एंड राइट इट योरसेल्फ. 2 क्वेश्चंस मैम ने कराए हैं, देन यू हैव टू डू 2 क्वेश्चंस बाय योर ओन सेल्फ. ओके, नेक्स्ट. सो डू यू नो अबाउट बारा डिस्ट्रिक्ट? अभी आपने जयपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में समझा ना? जस्ट लाइक सो बारा इज द सिटी. बारा इज द सिटी. व्हाट इज बारा? बारा इज द सिटी इन बारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. ओके, दैट वाज वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. ये राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है. इट इज फॉर्म्ड ऑन 10th अप्रैल 1948. ओके, तो आपके लिए भी क्वेश्चन है. आपको जयपुर का फाइंड आउट करना है. ओके, व्हेन जयपुर इज फॉर्म्ड. ओके, जयपुर को कब बनाया गया था? ओके, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू. टिपिकल डिशेज ऑफ बारा इंक्लूडेड ऑब्वियसली दाल बाटी एंड चूरमा. ओके, दाल बाटी चूरमा और रोटी इज ऑल्सो इंक्लूडेड हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the main language spoken in your district? People spoken in your district. आपके डिस्ट्रिक्ट में लोग कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं? हिंदी. We lives in Rajasthan, so we spoke Rajasthani also. Some people spoke Rajasthani. Okay, so in Jaipur there is obviously Hindi, English and Rajasthani spoken by the people. Next is, which is the main dresses worn by the people? Man and woman का आपको राइट करना है. Okay, we already discussed it. Next is, where is the district hospital situated of your district? आपके डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल कहाँ पर है? You also write the name of the hospital also. जयपुर का जो मेन आपका जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है ना राजस्थान में, yes, सवाई मानसिंह हॉस्पिटल. Yes, it is situated in Jaipur. SMS, it's a short form. Okay. Now next, and another searching question is, write the name of famous players, freedom fighter, artist and social activist of your district. आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के जो फेमस फ्रीडम फाइटर है, प्लेयर्स है, उन सबके नेम, कोई भी इनमें से कुछ हो तो आपको नेम राइट करके आना, सर्च करना है आपको आंसर. ओके, एंड मेन क्रॉप ग्रोन इन योर डिस्ट्रिक्ट. आपके डिस्ट्रिक्ट में किस टाइप कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो होती है? मेन फैक्ट्रीज, आपके डिस्ट्रिक्ट की मेन फैक्ट्रीज वो राइट करना है. मेन फूड आइटम ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट और इम्पोर्टेंट फेयर्स हेल्ड इन योर डिस्ट्रिक्ट. कौन कौन से मेन फेयर्स लगते हैं, कौन कौन से मेले लगते हैं? जयपुर में लगता है पुष्कर मेला. अभी बताया ना बेटा, मेन फेस्टिवल जयपुर का गणगौर है, तीज है, तो तीज फेयर लगता है, गणगौर फेयर लगता है. तो आपको ये राइट करना है यहाँ पर. ओके, इम्पोर्टेंट फेयर हेल्ड इन योर डिस्ट्रिक्ट, जो कहीं नहीं लगता, सिर्फ आपके डिस्ट्रिक्ट में ही लगता है. अंडरस्टूड? ओके, नाउ नेम द फॉलोइंग ऑफिसर कनेक्टेड विथ योर डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, अब बेटा देखो, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. हु इज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ योर स्टेट?
आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का नेम पता है? कलेक्टर, हु इज कलेक्टर? कलेक्टर इज द मेन, इनका वर्क होता है आपके डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क देखना, ठीक है। कलेक्टर IAS होते हैं जो कि अपॉइंट होते हैं एज ए कलेक्टर, और इनके पास मेन पावर्स होती है। तो आपके डिस्ट्रिक्ट के लैंड से रिलेटेड सारा वर्क ये करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करते हैं, टैक्सेस से रिलेटेड वर्क करते हैं गवर्नमेंट के, ठीक है। और साथ ही लॉ और ऑर्डर मेंटेन करने का वर्क इनका ही होता है। कभी नेचुरल डिजास्टर आ जाते हैं तो उस टाइम पे इनको अपने डिस्ट्रिक्ट को कैसे मैनेज करना है तो वो कलेक्टर करते हैं, है ना। कई बार हैवी रेन्स आ जाती है, कोई नेचुरल डिजास्टर आते हैं तो कलेक्टर्स आप लोगों को एक हॉलीडेज देते हैं ना, कलेक्टर की तरफ से हॉलीडे आते हैं ना, कि उनको राइट है, उनके पास ये राइट होता है कि अगर नेचुरल डिजास्टर बहुत ज्यादा आता है तो उनको मैनेज करना है, तो वो कैसे भी मैनेज करते हैं उस कंडीशन को, ठीक है, ताकि लोगों की सेफ्टी बनी रहे। ओके, समझ में आया? सो हु इज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर? मिस्टर जितेंद्र कुमार सोनी। मिस्टर he is the district collector of Jaipur. Okay, and second is member of parliament. जयपुर के पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है? जयपुर से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनका नेम है मंजू शर्मा। ओके, यू हैव टू राइट इट योरसेल्फ। नेक्स्ट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLA। MLA कौन है? तो बेटा देखो ये एरिया वाइज होते हैं, आपके वार्ड बने होते हैं ना, आपके हर एक प्लेस में वार्ड्स होते हैं ना, तो वार्ड के अकॉर्डिंग आपके MLA होते हैं, तो आपको अपने प्लेस के MLA का नेम राइट करना है। ओके, मेंबर ऑफ पंचायत समिति, तो बेटा ये पंचायत समिति विलेजेस में होती है, तो आप तो सिटीज में रहते हैं तो आप ये नहीं राइट करेंगे। मेंबर ऑफ जिला परिषद ये राइट करेंगे, जिला परिषद के मेंबर का नेम ये भी अकॉर्डिंग टू योर वार्ड होता है। ओके, तो ये आपको खुद को राइट करना है। नेक्स्ट है जिला प्रमुख कौन है? हमारे जिला प्रमुख है रमा देवी। ओके, हु इज द जिला प्रमुख? रमा देवी, शी इज द जिला प्रमुख। ओके, तो यू हैव टू राइट द नेम ऑफ दीज पीपल बाय योर ओन सेल्फ। ओके, प्रधान ऑफ पंचायत समिति, तो ये विलेज लेवल पे है, तो ये दो आपके राइट नहीं होंगे, आप लोग ये तो राइट होगा जिला परिषद वाला, सॉरी पंचायत समिति वाला। ओके, बिकॉज वी लिव्स इन सिटी। नेक्स्ट इज बैंक एंड कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। Okay, you have to find out all the answer of the questions. Okay, we will discuss this tomorrow. Clear? Next is banks and cooperative organization. You all know about banks? Huh? Bank is a place where we keep our money safe. आपकी मनी कहाँ सेफ रहती है? बैंक्स में. So bank does the work of the transaction of money. It accept money, deposit, pay interest on it. देखो, अगर आप बैंक में अपना मनी डिपॉजिट कराते हो तो उसके साथ इंटरेस्ट के साथ आपका पैसा बढ़ता रहता है, ठीक है, आपकी मनी बढ़ती रहती है. और अगर आप उनसे लोन लेते हो तो वो लोन भी आपको इंटरेस्ट के साथ पे करना पड़ता है, ठीक है, समझ आया? It also does the work of giving loans to the farmer, organization, industries, companies on interest. बैंक्स जो है वो सबको लोन देते हैं, ठीक है, चाहे वो हम पीपल्स हो, ठीक है, फार्मर्स हो, ठीक है, और कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई इंडस्ट्री हो, कोई कंपनी हो, सबको बैंक लोन प्रोवाइड कराती है, ओके, विथ इंटरेस्ट, ठीक है, बट उसका इंटरेस्ट भी लेती है. फार्मर यूज दिस मनी इन फार्मिंग टू परचेज सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड एक्सेट्रा. फार्मर जो लोन लेता है, ठीक है, उस लोन से वो अपनी क्रॉप्स ग्रो करने का काम करता है. अब क्रॉप्स ग्रो करने के लिए जो रिक्वायर्ड मटेरियल्स हैं,
ठीक है, वो उनको परचेज करता है, जस्ट लाइक गुड क्वालिटी के सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, कुछ टूल्स, ठीक है, वो परचेज करता है। ओके, फ्रॉम द इनकम अर्न फ्रॉम दीज वर्क्स दे रन देयर फैमिली एंड आल्सो पे द बैंक डेबिट। अब क्या होता है, जब अच्छी क्रॉप होती है फार्मर की, ठीक है, तो फार्मर को जो मनी मिलती है उससे वो अपनी फैमिली, जो फैमिली के जितने भी वर्क होते हैं वो चलाते हैं, ठीक है, मतलब में उनके जो डॉटर होते हैं, सन होते हैं, उनके जो भी फैमिली मेंबर्स होते हैं, एजुकेशन में देना होता है, ठीक है, जो हाउस होल्ड वर्क होता है उसके लिए, डेली के लिए, वो ग्रॉसरीज के लिए मनी चाहिए होती है। तो हम सबको मनी चाहिए ना जीने के लिए, वी नीड मनी टू लिव, है ना। आप क्लोथ वियर कर रहे हो तो सब चीजों के लिए मनी चाहिए। तो फार्मर्स अपनी जितनी भी इसको अपना घर का वर्क है सब कुछ देखने के लिए मनी चाहिए ना, है ना। और साथ ही अब वो अपना घर का काम भी चलाएगा और साथ ही बैंक को भी धीरे धीरे लोन्स जो है वो डेबिट करता जाएगा अपने उसमें, अपने इनकम में से। समझ में आया? अगर क्रॉप्स अच्छी हो गई तो फार्मर हैप्पी होते हैं, बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं। समझ में आया? कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर आल्सो रेस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड लोन्स टू द फार्मर फॉर द सेम वर्क। कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी बेटा लोन्स प्रोवाइड करवाती है, ठीक है, आपको भी प्रोवाइड करवा सकती है, फार्मर्स को भी प्रोवाइड करवा सकती है। ये भी क्या करते हैं, सोशल वर्क करते हैं, ठीक है, जो और साथ ही इनका काम भी क्या होता है, फार्मर्स को भी लोन प्रोवाइड कराना, कुछ नीडी लोगों को भी लोन्स प्रोवाइड करवाना, ठीक है। समझ में आ गया? नेक्स्ट इज, इन एशियन टाइम द फार्मर यूज्ड टू टेक लोन फ्रॉम होम। एंशियन टाइम में, ओल्डन पीरियड में फार्मर कहाँ से लेते थे लोन? अभी तो उनको बैंक मिल गया, क्या ओल्डन टाइम्स में, एंशियन टाइम पे बैंक होते थे? तो नहीं, वो उस टाइम पे वो मनी लीडर्स थे, क्या लेते थे, मनी लेते थे। जैसे आपने सुना होगा कि जमींदार है, साहूकार है, उन लोगों से वो लोन लेते थे, ठीक है। बट उस टाइम क्या होता था, जितना लोन लिया उनको उतना ही लोन वापस देना पड़ता था विद हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट भी वो बहुत ज्यादा लेते थे उसका। समझ में आया? इन प्रेजेंट टाइम फ्रॉम वेयर कैन फार्मर टेक लोन्स? प्रेजेंट टाइम में अभी फार्मर कहाँ से ले सकते हैं लोन्स? बैंक, और एक और है बेटा, बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटी। बैंक से भी ले सकते हैं और कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटी से भी फार्मर्स ले सकते हैं, ठीक है। अब फार्मर्स को ये लोग क्या है, कम इंटरेस्ट पे लोन दे देते हैं, ठीक है। समझ में आया? उनकी हेल्प करने के लिए कम इंटरेस्ट पे फार्मर्स को लोन मिलता है। और इसके अलावा गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी स्कीम्स निकाली है, किसके लिए, फार्मर के लिए, ताकि उनको इजीली बैंक लोन मिल जाए इन अ लो इंटरेस्ट रेट। अंडरस्टूड? Now next is, what is the difference between loan taken by the farmer in ancient times and the loan taken by the farmer in present time from the bank और cooperative society? क्या डिफरेंस है कि जब लोग पुराने टाइम में जो लोन लेते थे और आज के टाइम में जो बैंक से लोन ले रहे हैं उसमें क्या डिफरेंस है? देखो, जैसे मैंने आपको बताया ना कि ओल्डन टाइम से मनी लीडर्स से वो मनी लेते थे और उनको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता था, ठीक है। जैसे 2000 का उन्होंने लोन लिया है तो उनको 40,000 मतलब डबल मनी उनको पे करना पड़ता था, है ना। बट अभी क्या करना पड़ता है, बैंक्स जो है इनको लो इंटरेस्ट रेट पर लोन्स देते हैं। तो अब इनको, और साथ ही ये लोग, पहले तो कोई इंस्टॉलमेंट नहीं होती थी, पुराने टाइम पे लोग अपने ऐसे होते ना इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते थे, बट उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था, उनको एक साथ ही अपना इकट्ठा पैसा जो लोन में लिया है वो एक साथ देना पड़ता था। बट अभी क्या हुआ गया, अब बैंक्स क्या करते हैं, आप उनको इंस्टॉलमेंट में लोन चुका सकते हो। समझ में आ गया? छोटी छोटी मनी के थ्रू, तो फार्मर के लिए इजी हो गया है इंस्टॉलमेंट में पे करना। समझ आया? नेक्स्ट, पुलिस स्टेशन। Who works in police station? Who?
Policeman works in police station. So what is the work of police? To maintain law and order. Yes. क्या मेंटेन करने का काम है इनका? लॉ एंड ऑर्डर. देयर इज अ सिस्टम ऑफ पुलिस टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. गवर्नमेंट के जो भी लॉज है, जो रूल्स है, जो रेगुलेशंस है, उनको हम पीपल फॉलो करें. उनका काम है इसको फॉलो करवाना आप लोगों से. ओके. कई बार ऐसा होता है ना कि आप लोग हेलमेट नहीं वेयर करके जा रहे हो तो आपका चालान हो जाता है ना, पुलिस पकड़ लेती है ना. तो उनका वर्क है आपको हेलमेट पहनाना, आपके सेफ्टी को ध्यान रखना. तो वो आप लोगों पे क्या लगाती है? चालान. तो आप चालान के डर से ही हेलमेट पहनते कई लोग तो. बट दिस इज फॉर आवर सेफ्टी. तो उनका काम है जितने भी गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशंस, जो भी लॉज है, उन सबको पीपल से फॉलो करवाने का काम है. अंडरस्टूड? इन केसेस ऑफ एनी फाइट, अगर कहीं लड़ाई हो जाती है, एनी काइंड ऑफ डिस्प्यूट रिगार्डिंग अ ट्रांजैक्शन, मनी से लेकर, मतलब पैसे से लेकर मनी से रिगार्डिंग किसी के बीच में डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, कोई लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, और एनी अदर डिस्प्यूट इन विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट सेंचुरीज, मतलब फ्रूट्स की जो मंडियाँ होती है, जो फ्रूट सेंचुरीज होती है, अगर वहाँ किसी टाइप की कोई फाइट हो गई है लोगों के बीच में, या कोई मनी से रिलेटेड लोगों के बीच में डिस्प्यूट हो गया है, ठीक है, तो इसको सॉर्ट आउट करवाने का काम किसका होता है? पुलिस का. ओके. द विक्टिम कैन गो टू द पुलिस स्टेशन फॉर द हेल्प एंड फाइल द कंप्लेन एंड ग्रीवेंस. ठीक है. तो लोग वो क्या करवा सकते हैं? अगर किसी को प्रॉब्लम है कि किसी ने आपके नियर बाय में आपके साथ कोई प्रॉब्लम करी है, कोई फाइट कर गई है, तो आप कहाँ जाके कंप्लेन करवा सकते हैं? पुलिस स्टेशन में जाकर के कंप्लेन करवा सकते हैं. ओके. At many times, in case of any reported incident, the police also file an FIR. What is the meaning of FIR? FIR का क्या मीनिंग होता है बेटा? F means first, F means, I means information, और R means report. फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, मतलब किसी भी इंसिडेंट के बारे में जो आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन मिली है, उसकी रिपोर्ट को फाइल करना ही FIR होता है. अंडरस्टूड? तो किसी भी इंसिडेंट से रिगार्डिंग पुलिस जो है वो FIR फाइल कर सकती है और एक्शन ले सकती है. जो भी रिक्वायर्ड एक्शन है वो पुलिस ले सकती है. अगर FIR अगर एक बार लग गई तो पुलिस के ऊपर होता है कि उसको किस टाइप का एक्शन लेना है. ओके. द पुलिस कॉल पीपल इन द पुलिस स्टेशन फॉर इंट्रोगेशन एंड मैनी टाइम्स टेक देम इनटू कस्टडी, अरेस्ट क्रिमिनल्स एंड प्रेजेंट देम बिफोर द कोर्ट. अब पुलिस का क्या काम होता है? पुलिस क्या कर सकती है? लोगों को इंट्रोगेशन के लिए पुलिस स्टेशन में बुला सकती है. ओके. मीन्स पूछताछ के लिए उनको बुला सकती है, और किसी को भी कस्टडी में ले सकती है. अगर किसी ने क्राइम किया है तो उसको अरेस्ट कर सकती है. ओके. समझ में आया? और अरेस्ट करने के बाद में उसको कोर्ट के सामने पेश करेगी. ये सब काम किसका है? पुलिस. यस. द पुलिस इज टू सेफगार्ड द पीपल एनी हाउ फ्रॉम द culprits like thieves, killers. पुलिस का क्या काम होता है? लोगों को सेफ रखना. किन से? क्रिमिनल से. ठीक है. अब क्रिमिनल्स कौन हो सकते हैं? कोई थीव्स हो सकता है, कोई किलर हो सकता है. ठीक है. इन सब से लोगों को सेफ करना है. ये किसका काम है? पुलिस का. हम सेफ क्यों रहते हैं? क्योंकि पुलिस आपकी हेल्प कर रही है. ओके. While preparing the report of any crime, the police may also refer the section of Indian Penal Code on the basis of its nature. अगर किसी भी टाइप का क्राइम हुआ है तो उसके लिए इंडियन पैनल कोड में क्या है? इंडियन पैनल कोड के अंदर उससे रिलेटेड जो भी पनिशमेंट है, ठीक है, आपने जो भी क्राइम किया है उसके अंदर आपको क्या लगेगा, मीन्स आपको कितने इयर्स का पनिशमेंट है,
कि आपको कितना जुर्माना लगेगा, आपको कितना पे करना पड़ेगा उसके लिए मनी, या आपको मनी भी पे करना पड़ेगा और पनिशमेंट भी लेना पड़ेगा। ये सब इंडियन पैनल कोड के अंदर आता है। तो पुलिस देखती है कि आपने किस टाइप का क्राइम किया है तो और आपके लिए किस टाइप का पनिशमेंट होना चाहिए। ओके, अकॉर्डिंग टू द इंडियन पैनल कोड। ओके, पुलिस पेट्रोल फ्रॉम टाइम टू टाइम ड्यूरिंग डे एंड नाइट, मतलब पुलिस घूमती रहती है, ठीक है, टाइम टू टाइम जब उनको लगता है ना तो वो एक राउंड करती रहती है, चाहे डे हो चाहे नाइट हो। ओके, फॉर द सेफ्टी पर्पस, आपकी सेफ्टी के लिए पुलिस ये नहीं देखती कि डे है या नाइट है। ओके, चाहे डे हो चाहे नाइट हो, टाइम टू टाइम अगर उनको लगता है कि उनको राउंड करना है तो वो एक बार आपकी सिटी का या आपके एरिया का राउंड जरूर करेगी। ओके, and it also ensures that there is no unpleasant or criminal incident during any procession or public meeting। और पुलिस को ये बात भी ध्यान रखनी है कि किसी टाइप की कोई अनप्लीजेंट मतलब कोई अनहोनी ना हो। अगर कोई पब्लिक चीज़ें हो रही है, कोई पब्लिक प्लेसेस पे किसी टाइप की कोई भी इनोसेंट नहीं होना चाहिए, क्रिमिनल इनोसेंट नहीं होना चाहिए, सॉरी इंसिडेंट नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह की कोई घटना ना हो जाए। ओके, तो इसके लिए पुलिस जो है वो हमेशा तैयार रहती है। मोस्टली पब्लिक प्लेसेस में उनको हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है, ठीक है, किसी भी टाइप का कोई इंसिडेंट ना हो जाए। लोगों की कई बार होता है ना कि पब्लिक प्लेसेस पे कई बार आपने देखा होगा कि गन्स वगैरह चल जाती है ना, तो उनका काम उनकी सेफ्टी का काम किसका होता है? पुलिस का होता है। तो पुलिस पहले से ही अलर्ट रहती है, ठीक है। कोई भी अगर किसी पीएम का या किसी सीएम का अगर उनका कोई भी भाषण होता है ना, वो पब्लिक को एड्रेस करती है, कोई भी पीएम हो चाहे सीएम हो, तो उससे पहले ही वो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी रख देंगे। कौन? पुलिस, ठीक है। अपने हर जितने भी पुलिसमैन होते हैं उनको हर जगह वो खड़ा कर देंगे ताकि सिक्योरिटी बनी रहे, ठीक है। जितने लोग आएंगे उनको चेक करेंगे, सब कुछ उनके ऊपर डिपेंड होता है। ओके, नाउ अब आपको ये फाइंड आउट करने हैं नियरेस्ट पुलिस स्टेशन फ्रॉम योर होम। आपके घर के आसपास में जो पुलिस स्टेशन है वो कौन सा है? व्हाट इज द वर्क ऑफ पुलिस ड्यूरिंग एनी नेचुरल डिजास्टर। अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया तो पुलिस का क्या वर्क होता है? हाँ, लोगों को सेफ रखना। नेचुरल डिजास्टर होता है तो कई बार लोग बाहर चले जाते हैं, तो उनको सेफली घर पहुंचाने का काम किसका है? मेडिकल हेल्प कौन देगा? पुलिस, ठीक है। Where and why did police come in your village last? आखिर में कब और लास्ट डे कौन सा था जब आपके विलेज में कभी कोई पुलिसमैन आया है तो, या आपके नियर बाई एरिया में अगर कभी पुलिस आई है तो वो आपको राइट करना है। ओके, अंडरस्टूड। सो योर चैप्टर इज कंप्लीटेड and we will start the question answer tomorrow. Okay, have you understood the chapter? I will ask the question tomorrow also. Okay, goodbye beta.